Hello students, good morning to all of you. In the previous video we have seen the conversion of one unit into another unit, and we also see some standard conversion. Today we will continue this point, and there is one more conversion which is very important. On this conversion we have one question asked in the previous NEET examination, which was held in 14th October 2020, just 7 days before, okay, in NEET examination. Now see, conversion of degree to radian or radian to degree. Now students, degree or radian, these are the two systems to measure the plane angle. You know very well, we have supplementary quantity. For physical quantity we have three types: fundamental quantity, derived quantity, and third one is supplementary quantity. Okay, supplementary quantity, that is supplementary unit. Supplementary quantity regarding with the angle. Supplementary quantity, first is plane angle, and second one is solid angle. Yes. Now these are the two supplementary quantity. One is plane angle and second one is solid angle. What is plane angle? Plane, it is a two-dimensional angle. Okay, ये एंगल कैसे होते हैं? टू-डायमेंशनल एंगल होते हैं. ये कहाँ क्या होते हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस. ओके, यहाँ पर एंगल तैयार होते हैं. It is two-dimensional angle. It is two-dimensional angle. Okay, two-dimensional means जहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है. जैसे कि यहाँ रेक्टेंगल है, सपोज करो यहाँ पर जो भी एंगल्स है, ये 1 2 3 4 एंगल है, ये टू डायमेंशनल है. ये लेंथ, सपोज करो कि ब्रेथ है, दिस इज लेंथ एंड ब्रेथ, एंड हियर वी हैव द एंगल. दिस इज द टू डायमेंशनल एंगल, एंड दिस एंगल इज नोन एज व्हाट? प्लेन एंगल. ओके, सो प्लेन एंगल, इट इज टू डायमेंशनल एंगल. ओके, and for measuring the plane angle we have two system, that is the degree system and the radian system. Degree system you know very well. You have learned up to 10th standard. 10वीं तक आप सीखे वाले हैं कि डिग्री सिस्टम क्या होता है ना. डिग्री सिस्टम आपने जो है 10वीं सीखे वाले हैं, आपको मैं बता रहा हूँ डिग्री क्या होता है, यहाँ पर बता रहा हूँ इस वीडियो में. ओके, नाउ सॉलिड एंगल. अभी डिग्री सिस्टम के लिए हम डिग्री भी यूज करते हैं और रेडियन भी यूज करते हैं. इन फिजिक्स वी मोस्टली यूज डिग्री, radian. Okay, for unit of the plane angle. Okay, what is radian? We will see in this video. Solid angle, it is three-dimensional angle. It is three-dimensional angle. Solid angle क्या होती है? ये three-dimensional angle होती है. इसलिए हमारे सिलेबस में मतलब इसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम है और हमारे सिलेबस में नहीं है. आपको ये हायर स्टडी में आने वाला है, लेकिन आपको पता है ये थ्री-डायमेंशनल एंगल है. ये एंगल कहाँ क्या होता है? जो ज्योमेट्रिकल शेप 3D के होते हैं, स्फेरिकल शेप, कोनिकल शेप, है ना. तो ये शेप में ये एंगल क्या होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं. क्या बताते हैं इसे हम? सॉलिड एंगल. ओके, सो इसके लिए फिजिक्स में प्लेन एंगल के लिए हम यूनिट जो यूज करते हैं वो रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए स्ट्रैडियन. Okay, so radian and stradien. Stradien is the unit for the solid angle and the radian is the unit for the plane angle. Okay, now students, first of all we will see what is degree, what is radian, then what is the relation between degree and radian, and then we will see the numerical problems. Okay, which type of question asked on this concept in the previous examination, in the NEET examination, in the last NEET examination, one question is asked. It is very simple question, but we must know the concept of conversion of degree to radian or radian to degree. ये अगर concept आपको समझ में आए तो आप इस पे numerical जो base question आते हैं आप easily handle कर सकते हैं. So we will see one by one. First of all, we will see what is the degree. Okay, now see. Degree is what? Now we have two systems to measure the any plane angle. First of all, okay, we have two systems to measure
एनी प्लेन एंगल, किसी भी प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। ओके, पहली सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसे हम डिग्री मेजर बताते हैं, डिग्री मेजर। और दूसरी सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम जिसे हम रेडियन मेजर बताते हैं, रेडियन मेजर। Sexagesimal system which is known as degree measure and circular system which is known as radian measure. Okay, we will see one by one its concept, then we will see numerical problems. Now students, these two systems are used to measure the plane angle. Which angle? Plane angle. अब डिग्री सिस्टम में क्या होता है आप देखिए, डिग्री सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम आपको पता है दिस इज व्हाट, ये कंप्लीट रोटेशन है, दिस इज वन कंप्लीट रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द वन कंप्लीट रोटेशन। ओके, अब ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन है। अब मैं क्या करूंगा, ये रोटेशन के 360 इक्वल पार्ट करूंगा, समान 360 इसके भाग करूंगा। If we divide this into 360 equal part, 360 equal part, ये रोटेशन के मैं क्या कर रहा हूं 360 इक्वल पार्ट कर रहा हूं। सपोज दिस इज द वन पार्ट एंड दिस इज 360 पार्ट मूविंग लाइक दिस। ओके, फिर इसमें का एक पार्ट, इसमें का एक पार्ट जो मैंने 360 पार्ट किया किसके, वन कंप्लीट रोटेशन के, इसमें का एक पार्ट उसे हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम डिग्री बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सॉरी, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे। आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना? तो 1 रुपए के जो है ना, ये 1 रुपए ऐसा, तो उसके कितने पार्ट हो गए, 100 पार्ट हो गए, 100 पार्ट। तो उसका एक पार्ट 1 पैसा, इसके मीनिंग क्या होगा आपको, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पार्ट, उसमें का एक पार्ट हो गया 1 पैसा। इन द सेम वे एज दिस इज द वन कंप्लीट रोटेशन, और ये कंप्लीट रोटेशन के मुझे 360 पार्ट करना है, और उसमें का एक पार्ट उसको डिग्री बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम डिग्री। और आपको ये भी पता है कि वन कंप्लीट रोटेशन, ज्योमेट्री में आप सीखे, वन कंप्लीट रोटेशन इज नथिंग बट द होल एंगल, होल एंगल देखिए ज्योमेट्री, एंड होल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, दिस इज द सिंबल फॉर डिग्री। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिग्री? Degree is the 1 divided by 3/16 part of one complete rotation in anti-clockwise sense or direction. Degree is the 1 divided by 360 part of one complete rotation in anti-clockwise sense. Okay, मतलब पैसे क्या हो सकते हैं हम, 1 पैसा is equals to 1 divided by 100 part, 1 divided by 100 part of 1 rupees, 1 rupees, 1 रुपए का 100वां पार्ट, 100वां हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 पैसा बोलते हैं। उसी तरह से ये कंप्लीट रोटेशन होने के बाद उसके 360 हम समान हिस्से करेंगे, उसमें का एक हिस्सा बोलते क्या बोलेंगे उसे, हम उसे डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे, डिग्री बोलेंगे। नाउ सो 1 डिग्री, so 1 degree is equal to 1 divided by 360 part of one complete rotation, one rotation
ओके, सो स्टूडेंट्स वन, अब इसके हेड पे एक छोटा सा सर्कल तय करने का, इट रिप्रेजेंट द डिग्री, इट रिप्रेजेंट द डिग्री। सो 1 degree equals to 360 part of one rotation. Now see, this is the rotation, anti-clockwise rotation. We know that clock, the hands of clock perform the circular motion. Minute hand, hour hand, second hand, all the hands perform the what? Circular motion. Okay. So the concept of degree in terms of minute and second. The concept of degree in terms of minute and second. Okay. So 1 degree equals to what? So 1 degree equals to 1 degree is equals to 60 मिनट। देखिए जरा, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 degree equals to 60 dash represent minute, okay। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1 degree equals to 1 into 60 minute, that is 60 minute। डिग्री बड़ा है, ऑफ कोर्स डिग्री बड़ा है, किससे? मिनट से। तो जब हम बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में जब कन्वर्ट करते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं? वो स्टैंडर्ड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम छोटे क्वांटिटी को, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं? उस स्टैंडर्ड फैक्टर से डिवाइड करते हैं, मतलब क्या हो गया कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, हाउ मेनी डिग्री? क्या करना पड़ेगा हमें? 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री। देखिए अब दोनों चीजें लिख लीजिए। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, सो 1 मिनट इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री। ये कंसेप्ट अभी कल जो नीट में क्वेश्चन आया वाला है, तो उसमें वो नीट का क्वेश्चन जब सॉल्व करते वक्त वहां पर एक पहले इसके लिए किया सॉल्यूशन की। अब वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको बता रहा हूं जो क्वेश्चन पूछे वाला है, तो उस क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम 3 स्टेप का आंसर है, उसमें पहली स्टेप ये थी। ओके, सो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। नाउ एंड यू नो वेरी वेल, आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 minute is 60 seconds। 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 dash represent the minute and double dash represent the second। ओके, तो उसी तरह से फिर आप इसे किस तरह से सकते? 1 minute 1 into 60 second, that is 60 second। Again minute is greater than second। Now 1 second equals to how many minutes? So we will divide it 1/60 dash second का minute कर दिया मैंने। Okay, so remember this is small conversion, remember this। Now see, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा according to degree, represent the following into degree, minute and second। degree, minute and second। see, degree, minute and second क्या करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन है बस 25.37 डिग्री वैल्यू मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? इसे डिग्री, मिनट और सेकंड में रिप्रेजेंट करना है। देखिए पॉइंट के इधर भी होल नंबर होता है, पॉइंट के बाद जो संख्या होती है वो लेस देन 1 होती है। पॉइंट के बाद 37 में, पॉइंट के बाद हम कैसा रेट करते हैं? 37। इसे हम कैसा रेट करेंगे? 25.37 डिग्री। It is the correct. Ready? 25.37 degree. It is wrong reading. Point के बाद ये 37 नहीं है. It is less than 1. Point के बाद कितने भी डिग्री दिखाई नहीं दी, कितने भी डिग्री दिखाई नहीं दी कि
जितने भी डिजिट है ऑल आर लेस देन 1 है, सब एक से छोटे होते हैं पॉइंट के राइट साइड में। ओके, सो रिमेंबर दिस, मैथमेटिकली हमेशा पॉइंट के बाद एक एक डिजिट कॉल करेंगे रीड करते वक्त। ओके, 25, अब इसे आप 25 बोल सकते हैं, लेकिन इसे 37 कभी नहीं बोलिएगा, कभी नहीं। ओके, 25.37 डिग्री। अब इसे मुझे क्या करना है, डिग्री में लाना है, मिनट में लाना है, सेकंड में। अब मैं क्या करता, इसे ब्रेक करता, तोड़ता, 25 डिग्री प्लस 0.37 डिग्री। ओके, इसे ब्रेक कर देना, जो लेफ्ट साइड पे ना वही राइट साइड पे है, कुछ नया भी नहीं, खाली ब्रेक किया। अभी 25 डिग्री तो है, क्लियर कर दिया, इसको ऐसे ही रखिए। अब ये 0.37 डिग्री को मैं क्या करता, मिनट करता, मिनट। अब आपको पता है डिग्री का मिनट करने का तो क्या करना पड़ेगा, आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डैश, क्योंकि डिग्री बड़ा है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, उसका फैक्टर 60। अभी आप इसे मल्टीप्लाई करो, 37 into 60। ओके, मल्टीप्लाई करो आप रफ वर्क। ओके, पॉइंट दो डिजिट के बाद है, सो इट विल बी 25 डिग्री प्लस 22.20 मिनट। ओके, ये डिग्री का मैंने मिनट कर लिया। अब मैं क्या करता, इसे ब्रेक करता मिनट में, 22 मिनट प्लस 0.20 मिनट, ब्रेक कर लिया। अब मैं इसे ये जो ब्रेक करा पॉइंट के जगह, इसे मैं क्या करता, सेकंड में कन्वर्ट करता, सेकंड में। तो अब सेकंड में करने के लिए 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, 0.20 into 60 सेकंड। ओके, अब उसके बाद में क्या करता है, 25 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, अभी 20 into 60, 20 into 60 करो, आपको आंसर मिल जाएगा। दो पॉइंट के बाद पॉइंट है 12 सेकंड, सो इट विल बी 25 डिग्री 22 मिनट 12 second. So this is what 25.37 degree. 25.37 degree. This is equivalent to 25 degree 22 minute 12 second. So remember this. अब ये भी एक स्टेप थी क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में आपको जो तो जब कैलकुलेशन करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डिग्री को मिनट, डिग्री मिनट सेकंड, इस तरह से आपको ऑप्शन होते हैं। आपको डिग्री का मिनट सेकंड ये सब का कहना चाहिए। ओके, सो रिमेंबर दिस। ओके, एंड नोट डाउन दिस पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव सीन व्हाट इज द डिग्री, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट इज द रेडियन and the relation between degree and radian. Okay, and how the question was asked on this concept, that is the degree method and radian method. So this is very important conversion. It is very important conversion as far as concerned the competitive examination. Okay, so do homework yourself. I will give some question for your homework. Represent this degree, minute and second. Okay. Represent this degree, minute and second. Okay, okay, student. Here we will stop. We will continue in the next video. Thank you very much.